Okay, a very good evening to one and all. Sorry for a bit of interruption. We were having some network issue regarding that. But without wasting any further time, let's start discussing these questions of the GATE 2023. I guess we have discussed till question number 17. So question number 18 is on your screen for GATE 2023. So if you see this question is directly taken from the syllabus of NET JRF. I would not say it is a very technical question, and each and every year you find such kind of questions in uh, NET JRF environmental sciences also. So before we visit this, let's have a look at the um, detail of the information which is there. Okay, so this is the question taken from the air quality index, right? So this question was taken from air quality index. This is a question from GATE 2023, environmental science and engineering. And let's have a look at some of the detail regarding the AQI, and then we will move back to this. So if you see this table, here we have shown the National Ambient Air Quality Index, as you can see on my screen. So we have shown the National Ambient Air Quality Index, which is being given by uh, CPCB. So this is the National Ambient Air Quality Index, right? As per the 2009 notification, National Revised Ambient Air Quality Standard (NAAQS), right? So if you see these things, you can see here that SO2, we have the annual and 24-hour, respectively, in industrial, residential, and rural area, as well as the ecologically sensitive area, and how they're being measured. So the question is being asked on the limits. So we will move here. Like the sulfur dioxide, we have the annual limit of 50 microgram per meter cube in industrial area, and ecologically sensitive 20. Then we have 24 hours. It is 80 microgram per meter cube. Similarly, if you say the NO2, 40 and 30 microgram per meter cube, and 80 and 80 microgram per meter cube for 24 hour. Particulate matter which have been asked particularly in these questions, we will emphasize that PM10, the annual limits are 60 microgram per meter cube, and the 24 hour 100 microgram per meter cube with respect to industrial, residential, rural area, or if you say ecologically sensitive area. Then PM 2.5, the annual limit is 40, and the 24-hour limit is the 60 microgram per meter cube, as been mentioned here, right? So let's and other limits are also given, like we have given ozone 100 microgram per meter cube for 8 hour, and for 1 hour 180 microgram per meter cube. So similarly, other limits are being given, and this table is available to you in both the courses, right? So now we will move to the question which is being asked. So let's have a look at this question, what they ask. Now you can simply deal it. So if you see the screen now, the question is on your screen, and what they are asking, it's very simple. They are asking that which of the following is true according to CPCB, Government of India 2009 notification, which we just go through. So the first option, if you read carefully, 24-hour average, right? 24-hour average standard for PM 2.5 ambient is 60 microgram per meter cube. सही है एकदम. And 24-hour average standard of PM10 is ambient air is 100 microgram per meter cube. Absolutely correct. ये limit एकदम सही दी हुई है, और ये एकदम सही option है, right? Then the second questions, if you see, they have mentioned about 24-hour average standard PM 2.5 is indoor air is 60 microgram per meter cube. ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पे तो 60 नहीं हो सकता है, right?
ठीक है, और वो इंडोर में दिया हुआ है, जबकि जो क्वालिटी है वो एम्बियंट की है, और 24 आवर एवरेज स्टैंडर्ड फॉर पीएम एम्बियंट एयर इज, ये ठीक है, लेकिन आधा पार्ट इसका गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी गाइस। यहाँ पे इंडोर एयर नहीं है, यहाँ पे एम्बियंट एयर होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, then we move to the next statement which is also there. So next statement, if you see 24 hour average standard PM 2.5 is 60, तो ये तो ठीक है कि जो 24 घंटे का एवरेज होता है PM 2.5 का वो 60 है और एनुअली 40 है। बट नेक्स्ट 24 आवर एवरेज ऑफ PM 10 इन इंडोर एयर, ये गलत हो गया, इंडोर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एम्बियंट एयर होना चाहिए था, घर के अंदर की बात नहीं होती है, बाहर की, तो इट शुड बी एम्बियंट, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ यू सी 24 आवर एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड PM 2.5 इंडोर, ये फिर से इंडोर कह रहा है, राइट, और इंडोर कह रहा है, तो इंडोर नहीं वर्ड यूज करेंगे आप, एम्बियंट एयर क्वालिटी है ये, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हर जगह यहाँ पे जो वर्ड है गाइस, दैट वर्ड हैज टू बी एम्बियंट एयर क्वालिटी। ठीक है, एम्बियंट एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी के नहीं स्टैंडर्ड्स हैं ये, एम्बियंट एयर। तो अब आपको दिख गया है क्लियर कट कि पहला स्टेटमेंट ही सिर्फ ठीक है एज पर द गिवन थिंग्स, सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी 1। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा गाइज आपका ए हो जाएगा, राइट, वेर यू विल बी हैविंग द 24 hour average standard of PM 2.5 in ambient air is 60 and 24 hour average for PM 10 in ambient air is 100. So correct answer is first, और ये बहुत बार नेट जेआरएफ में आ चुका है क्वेश्चन, गेट में भी आ चुका है पहले। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ पे जल्दी बताइए फटाफट, क्विकली गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? या फर्स्ट इज करेक्ट, और ये दोनों जगह ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, इट कैन कम इनटू द नेट जेआरएफ आल्सो। आप ये मत सोचिएगा कि वहां नहीं आएगा, वहां भी आ सकता है, ठीक है, इट इज इक्वली रिलेवेंट फॉर दिस प्लेस आल्सो, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू डिटरमाइन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 90, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, वी हैव बीन गिवन सब इंडेक्स वैल्यू ऑफ NO2, SO2, PM10, 80, 80 and 100 and respective according to National Ambient Air Quality Index released by the Government of India in the year 2015, the overall NAQI, ओवरऑल नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन पक्का पक्का आपको नेट में भी मिल सकता है, क्योंकि ये नई चीज एक इंट्रोड्यूस हुई है, जो मतलब सब इंडेक्स से कैलकुलेशन, राइट। तो अब हम पहले इसकी डिटेलिंग करते हैं, दैट सब इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेट्स हैव अ लुक। तो जो एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है NAQI या AQI जो है, वो एक पैरामीटर है आपका, जिसको हमने 0 to 500 ग्रेड किया है, और उसमें अलग अलग स्केल रखे हैं हमने, जिनकी बातें होती हैं कि 0 to 50 आपका गुड है, 50 to 100 आपका थोड़ा सा और सिवियर कैटेगरी में जाएगा, फिर आप 100 to 200 जाएंगे, 200 to 300, लास्ट में 400 to 500, जहाँ मरून कलर आपका आता है, उसमें मैं डिटेल नहीं करूंगा। मेरा काम क्या है कि वाइल कंपाइलिंग दिस एम्बिएंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स फ्रॉम सब इंडेक्स, अगर किसी पोल्यूटेंट के रिस्पेक्ट में दिया हो, तो आपको कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो बात आपको ये याद रखनी है दैट क्राइटेरिया पोल्यूटेंट बीइंग इन्वॉल्वड हियर कौन कौन से हैं। तो जो मेरा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो गाइज वी इंक्लूड PM10, PM2.5, राइट, वी इंक्लूड ओजोन, CO जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है आपके, NO2, SO2, ये तो करते ही हैं, और कहीं कहीं अमोनिया को भी हम ले लेते हैं अपने लूप में, ठीक है। तो अब ये जो आपके 7 बन गए, आइडियली तो ये 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होते हैं, बट 7 इनका आवरली डाटा आपने लिया। नाउ द टास्क इज दैट कि मैं देख के कैसे बताऊं अगर मुझे सब इंडेक्स दिया हो तो एक बात तो श्योर है कि जो सब इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना होता है, यू हैव टू हैव PM10 एंड 2.5 मैंडेटरी, राइट, है ना। 7 चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर, जनरली तो 6 ही होती है, बट अब अमोनिया भी आ गया है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए गए हैं। द AQI कैलकुलेटेड यूजेस 7 मेजर्स, PM 2.5, 10, SO2, NO2, अमोनिया, CO एंड ओजोन।
For PM 2.5 and 10, SO2, NO2, ammonia are the average value in 24 hour is used with a condition at least having the 16 वैल्यू, मतलब कम से कम आपको 16 मेजरमेंट होनी चाहिए आपके पास रीडिंग, ठीक है। उसके बाद जो सीओ है और ओजोन है उसकी 8 आवर की एवरेज होनी चाहिए अगर आपको मेजर भी करनी है। जो मेन बात मुझे लगी इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये पता होना जरूरी होना चाहिए कि आप सब इंडेक्स से कैसे निकाल सकते हो। तो एक ही पॉइंट मुझे अच्छा लगा इसमें, फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द मैक्सिमम सब इंडेक्स, मतलब जो भी आपको सब इंडेक्स दिए हो उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर लोगे। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन होती है उसके साथ कि हम मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर ले, ठीक है। लेड नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं, लेड नहीं करते हैं, होता है लेड क्राइटेरिया में, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते समय लेड यूज नहीं करते। तो फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द मैक्सिमम सब इंडेक्स विद द कंडीशन दैट एटलीस्ट वन ऑफ पीएम 2.5 एंड पीएम 10 शुड बी अवेलेबल। एक कोई रीडिंग हमें अवेलेबल हो पीएम 10 की या 2.5 की, ठीक है, दोनों में से, है ना। एंड एटलीस्ट 3 आउट ऑफ दीज 7 शुड बी देयर, मतलब ये जो हमने 7 मेंशन किए हैं, पीएम 2.5, पीएम 10, ठीक है, पीएम 2.5, पीएम 10, SO2, NO2, अमोनिया, CO, ओजोन, इनमें से कोई 3 होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3, ठीक है। और पीएम 10 या 2.5 में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आप ले लें। अब क्या है, यहां पे क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है इसमें कि सब इंडेक्स से कैसे निकालेंगे। तो सब इंडेक्स यहाँ पे आपको दे दिया गया है, किस किस चीज का सब इंडेक्स दिया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या कहा है कि द सब इंडेक्स वैल्यू ऑफ NO2। तो जब सब इंडेक्स की मैं बात करता हूं, तो सब इंडेक्स की जब मैं बात करता हूं तो सब इंडेक्स मुझे दिया है यहाँ पे, और मुझे फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, सब इंडेक्स भी किसका दिया है, सब इंडेक्स आपको दिया है NO2 का, कितना दिया है 80। आपको सब इंडेक्स दिया है SO2 का, कितना दिया है जी, वो भी 80। और आपको फाइनली PM 10 का सब इंडेक्स दिया है विच इज 100। अब मेरे लिए कंडीशन फुलफिल हो गई, मेरे पास 3 पैरामीटर दिए मिनिमम जो मुझे चाहिए थे, 3 शुड आउट ऑफ द 7 शुड बी देयर, वो तो फुलफिल हो गया। दूसरा, 1 ऑफ 2.5 और 10 शुड बी अवेलेबल, ठीक है, PM 10 अवेलेबल है। अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, फाइनली AQI इज द मैक्सिमम सब इंडेक्स, तो इनमें तीनों में से जो मैक्सिमम है वो ले लूंगा। तो मुझे पता चल गया मैक्सिमम यहाँ पे कौन है गाइस, मैक्सिमम यहाँ पे है आपका PM 10 विच इज 100, ठीक है। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कम से कम कंडीशन क्या है, 3 पैरामीटर हो इसमें से, और एक उसमें से PM 10 या 2.5 हो, और फिर जो तीनों में से मैक्सिमम होगा वही मेरा फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। यस, अब देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाला है, अभी ये कोई इसमें टफनेस नहीं आएगी आपको, देखिए ध्यान से देखो। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन नंबर 19 द सब इंडेक्स वैल्यू ऑफ NO2, SO2 एंड PM 10। तो कितनी कितनी दी है, 80, 80 एंड 100, मतलब PM 10 की 100 है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 पैरामीटर्स हैं और PM 10 उनमें से एक है, रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर 2040, द ओवरऑल NAQI, ओवरऑल NAQI क्या होगा, जो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस मेरा क्या, करेक्ट आंसर वुड बी हियर 100। तो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया 100। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये इसका एरिया का AQI हो गया। क्या ये क्लियर है सबको, जल्दी बताइए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एनटीए नेट जेआरएफ में मिल सकता है 100% श्योर, बहुत प्रोबेबिलिटी है, नई चीज आई है ये मार्केट में। क्लियर है सबको, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसी में एक वेस्ट से रेज किया है गाइस, ठीक है, दे हैव रेज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेस्ट हियर, ठीक है, जो कि हमारे लिए कॉमन टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे से अंकिता मैम के लेक्चर हैं उस पे, मनीषा मैम के भी है, हमारे मटेरियल कंटेंट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलने से पहले हम थोड़ा सा लिटरेचर देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है जो हमारे
वेस्ट की कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार ना। तो यहाँ पे देखिए ये चार तरह के कलर आपको मिलेंगे जनरली व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द disposal of the biomedical waste as mentioned by biomedical waste management and handling rule 2016। तो उसमें आपको चार तरह के कलर जनरली यू विल बी हैविंग एंड व्हाट यू विल गेट देयर। जैसे येलो कलर है जी आपका, तो येलो कलर में के बॉक्स में आप डालेंगे ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड, क्लिनिकल वेस्ट, ये सब आपके येलो कलर के बॉक्स में जाता है। वेयर यू हैव द बिन सिस्टम इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो आपको दिए जाते हैं। दूसरा जब आप बात करते हैं रेड कलर में क्या जाएगा, तो रेड कलर का जो डस्टबिन होगा उसमें कंटामिनेटेड वेस्ट जैसे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, पाइप्स, कंटेनर, कैथेटर्स, ये सब जाएंगे। फिर आपका आता है जी व्हाइट कलर का, राइट। व्हाइट कलर में आपके स्कैल्पल, ब्लेड, निडल जो शार्प होंगी, सिरिंजेस विद फिक्स निडल, शार्प मेटल्स, निडल टिप्स, कटर, ये सब आपके व्हाइट कलर के में चले जाएंगे। ठीक है। फिर आपका एक आएगा ब्लू कलर का गाइस। ठीक है। ब्लू कलर में क्या जाएंगे जी, ब्रोकन ग्लासवेयर, साइटोटॉक्सिक वेस्ट जैसे ड्रग्स वगैरह होती है, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, कंटेमिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स, तो ये ब्लू कलर के डस्टबिन में वहां पे जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ये चार कैटेगरी हो गई। दूसरी बात क्या है, जो ग्रीन कलर का डस्टबिन है, दैट इज हाउ हाउएवर ऑलवेज बीन द इंडिकेटर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो भी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है, ग्रीन कलर का इंडिकेटर उसी का है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, द ग्रीन बैग आर फॉर द नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनका कोई रोल नहीं है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में कोई उनका रोल ही नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट में भी आप फोर कैटेगरी, येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, तो ये जो चार कैटेगरी आपको मेंशन की गई है, येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, दीज बिलोंग टू बायोमेडिकल वेस्ट। एक बात ध्यान रखनी, तो दीज फोर कैटेगरीज आर फॉर बायोमेडिकल, और जो ग्रीन कलर है वो नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है। ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है चारों कैटेगरी। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिससे कि आपको करने में बहुत सहूलियत होगी, इसीलिए हम पहले से कॉन्सेप्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, सो दैट स्टूडेंट हैव अ क्लियर आइडिया कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, मतलब मेरे हिसाब से 20th क्वेश्चन वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ द इन्वायरमेंटल साइंस डोमेन पर्सन। एंड साथ साथ आपको ये भी सीखना है यहाँ पे कि ये कोई पेपर ऐसा नहीं है इट इज मीन्ड फॉर ओनली द स्टूडेंट ऑफ एमटेक एंड एटसेट्रा, वो नहीं है, आपका भी इस पे इक्वल राइट है। सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, राइट, so question number 20, when you see, right, which of the following is not a designated waste category under biomedical waste management rule 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि जो कैटेगरीज है येलो, रेड, ब्लू, वो तो बायोमेडिकल वेस्ट में है, तो ये भी बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी है, रेड भी है, ब्लू भी है, लेकिन ग्रीन नहीं है। ग्रीन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ग्रीन इज द कैटेगरी वेयर वी हैव अ नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ग्रीन कैटेगरी जो है, दैट बेसिकली बिलोंग्स टू नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन। ये भी बायोमेडिकल वेस्ट है, येलो भी, ठीक है, रेड भी बायोमेडिकल है, ब्लू भी बायोमेडिकल है, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन, क्योंकि नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर सॉरी, नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ग्रीन कलर बायोमेडिकल वेस्ट के नहीं है। तो करेक्ट आंसर हेयर इज ग्रीन। तो ग्रीन इज द करेक्ट आंसर हेयर। किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताइए। ग्रीन कलर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको आएगा। एनी डाउट एनीवन? ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है इस बार के जून वाले एग्जाम में कुछ मिलता जुलता। ठीक है ना। और जो गेट दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, ठीक है, उनके लिए तो कोई इशू है नहीं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाँ, फिर से बहुत इजी एक क्वेश्चन आया आपके लिए, जिसमें कुछ था ही नहीं, मतलब इन द सेंस आई वुड नॉट से यहाँ पे कुछ है बहुत मेजर। ठीक है, कुछ मेजर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 21 की जब आप बात करते हो, जिन्होंने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016 पढ़े हैं,
जो भी हमने बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी पढ़ी उसमें एक कैटेगरी आती है हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो गाइस जब आप हैजार्डस वेस्ट की बात करते हो तो जब आप पढ़ोगे और हम आपको पढ़ाएंगे वेस्ट, तो उसमें आप उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो आप, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली रिप्रेजेंट द हैजार्डस कैटेगरी। ठीक है, तो हैजार्डस में आप कहते हो इनफेक्टिविटी। ठीक है, ठीक है जी, इनफेक्टिविटी एक होती है, दूसरी होती है रिएक्टिविटी, देन यू हैव कोरोसिविटी। ठीक है, फिर आपका होता है टॉक्सिसिटी। ठीक है, और एक आपके पास होता है नेक्स्ट इज कार्सिनोजेनेसिटी। ठीक है, कार्सिनोजेनिक। ठीक है, ये कार्सिनोजेनेसिटी। ठीक है, और इसके अलावा कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि म्यूटाजेनेसिटी या कार्सिनोजेनेसिटी एक ही बात है, म्यूटाजेनिक मतलब जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक कोई हैजार्डस वेस्ट होगा उसके अंदर ये मिलेगी। जैसे कोरोसिविटी है, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक होगा तो कोरोसिव है। इन्फेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, म्यूटासिटी, म्यूटाजेनिक मतलब म्यूटेशन कॉजिंग। अब एक बात और है यहाँ पे, जैसे इन्फ्लेमेबल, वो भी एक हैजार्डस का कैरेक्टरिस्टिक है, जो जल्दी से आग पकड़ ले। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी हैजार्डस वेस्ट को डिफाइन करते हैं। गाइस ये बात ध्यान रखनी है कि हैजार्डस वेस्ट के ये कुछ पर्टिकुलर, हाँ जी, म्यूटाजेनिक मतलब विच कॉजेज द म्यूटेशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस, वेरी गुड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम मानते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसी भी चीज के लिए हमारी उसको हैजार्डस डिक्लेयर करते हैं। अगर वहां पर ये चीज होती है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज हैजार्डस। चलो जी, अच्छी बात है, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम ऑफ क्वेश्चन पूछता है, कहता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कंसिडर द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरीज। पहले कहता है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। अब भाई डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट तो हैजार्डस ही है, उसमें तो आप उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, वो तो हैजार्डस है। फिर कहता है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट तो अलग कैटेगरी में आता है देखिए, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेस्ट इज ऑलवेज हैजार्डस। न्यूक्लियर वेस्ट क्योंकि जो आपका टॉक्सिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है, म्यूटाजेनिक भी है। ठीक है ना, इन्फेक्टिव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पजेस करता है। अब तीसरा आपसे पूछता है थोड़ी सी एक अलग कैटेगरी, कहता है स्लज फ्रॉम द वेट स्क्रबर ऑफ हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये कैटेगरी हुई जो आपके स्क्रबर होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द फ्लू गैसेस एंड द पर्टिकुलर मैटर, हमने आपको एयर में भी पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट कहता है क्रोमियम बियरिंग रेजिड्यूज एंड स्लज फ्रॉम द लेदर टैनरीज, क्योंकि क्रोमियम आपको पता है हेक्सावेलेंट क्रोमियम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये रेजिड्यू और स्लज है फ्रॉम द लेदर टैनरीज। अब क्या है, जब ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल बनाया गया मूवमेंट के लिए कि कोई भी कंट्री अपना हैजार्डस वेस्ट जो है दूसरी कंट्री में डंप नहीं कर सकती, तब इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, चाहे वो स्लज हो फ्रॉम कवर ऑफ हैजार्डस वेस्ट, और चाहे फिर आपका क्रोमियम हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है आपकी कंट्री के अंदर, या फिर जो स्लज भी होती है वेट स्क्रबर की, ये भी आप नॉर्मल डिस्पोज करते हो, तो ये किसी इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट में काम नहीं आता, जिसमें बेसल कन्वेंशन आपकी आती है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा है, which one of the option correctly represent the waste category not covered under hazardous and other waste। ठीक है, मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2060 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा है नॉट कवर्ड। ठीक है, तो जो आपका कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसको हमने कवर्ड ही नहीं किया गया है अंडर द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, या मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2016 में जो है, तो ये जो पहली दो कैटेगरी है ना, इनको कवर नहीं किया गया। नीचे वालों के लिए अलग से क्लॉज निकाला है सीपीसीबी ने कि इनको आप दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये जो नॉट कवर्ड आएगा आपका, तो नॉट कवर्ड में 1 और 2 आ जाएंगे। नीचे वालों के लिए तो स्टेटमेंट लिख दिया है कि कोई भी कंट्री अपना स्लज वेट स्क्रबर से इधर से उधर नहीं भेज सकती, कोई भी कंट्री अपने यहां से जैसे क्रोमियम स्लज होगी लेदर टैनरी की, वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकती दूसरी कंट्री में। लेकिन पहले दो को तो, ठीक है, तो जो नॉट इंक्लूडेड कैटेगरी है, ठीक है ना, तो वो इस लॉ में इंक्लूड नहीं की गई है। तो ऊपर की दो कैटेगरी जो येलो में मैंने हाईलाइट की है वो एक्चुअली में इसमें इंक्लूड नहीं हुई। ठीक है, तो जो पहली दो कैटेगरी है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उसको अब जैसे कोई मान लीजिए सैनिटरी नैपकिन है,
या बच्चे का डायपर है, या कोई आप जैसे जो नॉर्मल जो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, बैटरीज हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और न्यूक्लियर वेस्ट को भी इसमें अलग कैटेगरी में रखा गया, न्यूक्लियर वेस्ट भी इसमें नहीं है, क्योंकि वो एक कंट्री का अपना सिविलियन इशू है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उस न्यूक्लियर वेस्ट को आप रिप्रोसेसिंग में यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो जो पहली दो कैटेगरीज है, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट, को इसमें नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ये पूछा नॉट नॉट कवर्ड। तो नॉट कवर्ड में 1 और 2 इज नॉट कवर्ड। न्यूक्लियर वेस्ट और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट इसमें कवर नहीं किया गया है। सो करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है गाइस? जल्दी बताइए फटाफट। ये आपको सीपीसीबी की नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पे मेंशन किया हुआ है कि किसको इंक्लूड किया है। तो नीचे वाले जो दोनों है उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो उनको इंक्लूड किया गया है और ऊपर वालों को छोड़ दिया गया। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, इसको तो जो ना मिला पाए ना वो तो फिर कलाकार है, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम पढ़ाते भी हैं जहां भी जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अंडर ग्रेजुएट की टेक्स्ट बुक में है और आपकी डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है। देखो मेरे को अगर कुछ भी नहीं आता ना, क्वेश्चन नंबर 22 की जब बात करते हो, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, इसको आप इजीली करेक्ट कर सकते थे। कैसे? सबसे पहले आप कहो पेट बॉटल, जो दी है ना पेट बॉटल, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की होती है, ये सब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, पानी पीते हो। तो पॉलीइथिलीन टेरीपेथेलेट इसका पॉलीमर होता है, पॉलीइथिलीन का। पेट बोलते हैं इसको, पी फॉर पॉलीइथिलीन और टी फॉर पैथेलेट, टी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो पेट बॉटल्स हैं, जो पेट बॉटल्स हैं आपकी, वो कहाँ आप यूज करते हो गाइस? वाटर बॉटल्स में, कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में, एटसेट्रा। तो आर का थ्री अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो मेरे लिए इससे बढ़िया हिंट इस क्वेश्चन में था नहीं कोई भी, मैं बता दूं आप। इससे बढ़िया हिंट मेरे पास कोई था नहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि R3 केवल एक ही में है। तो बस उसके बाद क्या था, उसके बाद तो मेरा ये क्वेश्चन होता चला गया। जो पी है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP जिसको आप कहते हो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम जियो मेम्ब्रेन फॉर लैंडफिल लाइनर्स, जैसे आपकी जो हाई क्वालिटी की रबड़ होती है, जो आपकी सैनिटरी लैंडफिल बनती है, उसमें लेयरिंग लगती है। तो ए आपका चला जाएगा जी फोर्थ पे, पी आपका चला जाएगा फोर्थ पे। फिर क्यू आपका लो डेंसिटी पॉलिथीन गाइस, लो डेंसिटी पॉलिथीन जो आप लेंगे, है ना, वो आपका हो गया गार्बेज। जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन आप लगाते हो, गार्बेज बैग, बबल पैकेजिंग, जो पैक आता है आपका, रैपर पैक आता है। तो क्यू आपका चला गया जी, क्यू आपका चला जाएगा कहां पे? ए, फर्स्ट पे। और पॉलीस्टाइरिन आपका ये बन गया, पॉलीस्टाइरिन फार्मास्यूटिकल बॉटल, स्टायरोफॉर्म कप्स। पॉलीस्टाइरिन जो स्टायरोफॉर्म के कप बनते हैं आपके, जो हमने आपको एयर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे स्टायरोफॉर्म जो होता है आपका, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कि जो एयर बबल ट्रैप हो जाता है तो स्टायरोफॉर्म बनता है, जो थर्माकोल, थर्माकोल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो इजीली आपने गेस कर लिया भाई। हमने लिंक किया इसको पेट बॉटल से। पेट बॉटल्स होती है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो पेट बॉटल से हमने इसको लिंक किया। तो पेट बॉटल जो है आमने सामने, आर वाला जो है पेट बॉटल जो आपको मेंशन है यहाँ पे, तो पेट बॉटल जो है वाटर बॉटल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती है, ठीक है। तो यहां से फिर आपको आंसर इसका करेक्ट मिल गया गाइस। फर्स्ट इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं, ये 12th के पॉलीमर के चैप्टर में दिया हुआ है, एक टेबल दी होती है वहां पे 12th क्लास में केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम है पॉलीमर, ठीक है, 2 मार्क का वो चैप्टर है। वहां पे ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मतलब यही चीजें दी हुई है वहां एग्जाम्पल में, कि पेट बॉटल्स किसका एग्जाम्पल है? तो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथिलीन टेरीपेथेलेट पेट बॉटल्स। उसके बाद आपका जो है एक ही ऑप्शन है जिसमें R3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे पी है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो जियो मेम्ब्रेन फॉर लैंडफिलर, जो आप सैनिटरी लैंडफिल्स बनाते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन है, वो गार्बेज बैग्स और बबल पैकेजिंग, ब्लैक कलर की पॉलीथीन आप लगाते हैं, ठीक है। और जो आपका एस है पॉलीस्टाइरीन, दैट इज आपका फार्मास्यूटिकल बॉटल्स और स्टायरोफॉर्म कप्स। क्लियर है?
22 क्वेश्चन क्लियर है। मेरे को नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा टफनेस फील होगी किसी भी बच्चे को जो थोड़ा बहुत 11th 12th में केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा है या यहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक से पढ़ रहा है। और ये हमारे बुकलेट से लिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बुकलेट में ये है 4 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये वहीं से आया है क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 22 में? चलिए जी अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने थोड़े से लिटरेचर रिव्यू के ऊपर चलते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को करने से पहले वहां से आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरेटिकली है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आप जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बस मैं ईयर मेंशन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब कुछ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का ही दिख रहा है सब कुछ, आप देखिए ध्यान से। तो जो इवेंट्स हैं ये आपको मेंशन भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट स्टिल आई विल हाईलाइट। तो पहला इवेंट जो है वहां पे मेंशन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट वाला कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था गाइस, और ये 1972 में हुआ था। ठीक है ना? तो when the United Nations General Assembly decided to convenes the 1972 Stockholm Conference, taking up the office of the governing body of the Sweden। ठीक है, और यहाँ पे जो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी यहाँ पे क्रिएट हुआ था। दूसरा आपका वियना कन्वेंशन दिया हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो है 1985 में वियना कन्वेंशन आपकी आई थी। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया था कि जो आप सीएफसी हैं उसमें रिडक्शन करें। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना? ठीक है, दूसरा 2021 की जब बात करते हैं, 2021 की, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूएनएफसीसी, मोर कॉमनली रेफर टू एज कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आपकी जो हुई थी सैक ग्लासको में हुई थी, स्कॉटलैंड में, यूके में जो पार्ट है। तो ये बस इतना ही आपको पता करना है कि ये कॉप जो था 21 वो कहाँ हुआ था, तो 2021 में। उसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, जो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए है, इंटरनेशनल ट्रीटी टू डिजाइन द प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, इसमें सीएफसी आते हैं। तो ये 1987 में एग्रीड हुए थे और फोर्स में आई थी 1989 में। बस अब ये चार चीजें लेके आपका ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इफ यू सी द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, इफ आई सी द क्वेश्चन करेक्टली, मेरे अंदर एक माइंड मैप आ गया। तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस आपको मैंने बताई ऊपर, जो यूएनईपी जहां पे आया, तो आपको पता चल गया भाई कि 1972 का इसका ओरिजिन है। ठीक है ना? 1972 का इसका ओरिजिन है। जो पहले वाली कॉन्फ्रेंस थी वो डालते जाइए, बस आप ईयर क्रोनोलॉजी बतानी है। ये 1972 का इवेंट है। ठीक है, जिसको आप, ये हो गया। फिर जो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर है 1985 गाइस। फिर आपका कॉप 26 जो है, ठीक है, जो कॉप 26 की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो कॉप 26 जो 2021 में हुआ आपका, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप 2021 कॉप 21, कॉप 26 सॉरी, 2021 हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है 87 में एस्टेब्लिश हुआ आपका, 89 में लागू हुआ। बस दो बातें आपको पता होनी चाहिए। मेनली तो 87 में एग्रीड की थी कंट्री सारी, यहाँ पे आप 87 डाल दीजिए बस। 1987 का है ये। अब इसका क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा 72, 1972, वो किस ऑप्शन में, वन में। उसके बाद कौन आएगा जी 1985, वो किस ऑप्शन में है, टू में। उसके बाद कौन आएगा 1987, वो किस ऑप्शन में है, फोर में। और लास्ट में कौन आएगा 2021, वो किस में है, थर्ड में। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। ये तो बहुत ही प्लेन क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपकी फोर्थ बुकलेट से, लॉ वाले यूनिट से लिया गया, डायरेक्ट एकदम वहीं से है सीधा। कोई डाउट है किसी को इसमें, जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर
23 में किसी को कोई डाउट है? ए इज द करेक्ट चॉइस, ए इज द करेक्ट चॉइस हियर, ठीक है, ए इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इसको ना 1829, चलिए इसको अभी हम यहीं रोकेंगे क्योंकि हमें थ्योरी की क्लास अपनी नेट वाली थोड़ी स्टार्ट करनी है, तो उसको भी करना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास टाइम है, कल से होपफुली हम शायद 2 आवर का डिस्कशन रखें, 6 to 7 एंड 7 to 8, एंड देन वी विल डू अ थ्योरी क्लास। मतलब 31 तक हमें खत्म करना है इसको, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसके बाद 3 या 4 तारीख को एग्जाम है। तो हम इसको यहीं रोकते हैं अभी, और मैं आपको सेपरेट एक आईडी अभी इशू करूंगा अलग से। तो हम अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है अभी थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने 23 तक डिस्कस किया है, एंड देन वी विल अप्रोच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी है अपने पास टाइम है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 40 क्वेश्चन और है, तो जल्दी जल्दी ये हो जाएंगे। आज थोड़ा नेटवर्क की वजह से हम लोग थोड़ा सा डिलेड मोड में है, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल हैं, तो उनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ईच एंड एवरी ऑप्शन यू हैव टू पुट फॉरवर्ड। So see you guys in 2 minutes with the new ID. Thank you very much. Thanks for your patience. Thanks for being here.